Hi guys, welcome back to a very new video at WeTrade Daily. In this video, you will see how I made around 18,000 by scalping. Completely scalping, all the trades were taken in Bank Nifty options. So we'll get down to understanding how that's done. And before that, this was a live trade that I actually did, and I recorded every single trade that I took. But for some reason, the file that I recorded was corrupted. When I sat down to edit the video, I could find that the files are not good. So I'm recording this again at 4:54 right now. And this is the video where I'm gonna simplify the entire concept in a much more easier way. And I've already marked all the levels where you can easily understand what's happening, right? So without wasting any further time, we'll get right into it. Before we begin, do subscribe to the channel and like the video, because इस तरह के वीडियो और आते रहेंगे चैनल पे. लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस, स्कैल्पिंग की वीडियोस एंड ऑप्शंस, फ्यूचर्स, बहुत सारे बहुत सारे कंटेंट आते रहेंगे चैनल पे. सो डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड we'll get started right away. As you can see on the screen, we have booked around 18,000 today. Let me refresh the page. So if you check my order book, around 27 trades हमने place किए थे. इसमें आप मान लो 4 ट्रेड तो इसका कैंसिल करने का ही हो गया था. अराउंड स्टॉप लॉस ये सब कैंसिल ट्रेड्स हैं. तो मैंने आसपास प्रॉपर्ली देखे तो मैंने अराउंड 10 to 11 ट्रेड्स लिए होंगे, जिसमें 5 to 6 ट्रेड स्कैल्पिंग के हैं और बाकी जो 3 ट्रेड है वो इक्विटी में लिया था मैंने. जो मैरिको, कैडिलैक एंड आईटीसी में मैंने इक्विटी का ट्रेड लिया था, जो तीनों मैंने लॉसेस में ही क्लोज किए, बिकॉज अराउंड 2 आई हैड अनदर मीटिंग एंड आई वाजंट एक्टिव हियर. आई डिड नॉट वांटेड टू लेट माय ट्रेड रन. सो मैंने क्लोज करके आई केम बैक लेटर अराउंड 2:30 to 45 मैंने आके एक और मैंने ऑप्शन का ट्रेड लिया था. विल डिस्कस व्हाट दोस ट्रेड्स वर. सो मैंने फर्स्ट ट्रेड जो लिया था वो है 932 to 934. और एक बात याद रखिए, ये जो सारे ट्रेड्स मैंने लिए हैं सारे स्कैल्पिंग ट्रेड्स हैं. तो स्कैल्पिंग का अगर आप समझते नहीं है कि व्हाट इज स्कैल्पिंग, और इफ यू आर वेरी न्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैल्पिंग, then you will have to let me know in the comments and I will make a new video for you which is entirely about scalping. Also, I think I have a video on my channel itself about scalping and day trading. You can go watch that for more details. So at 9:32, my first trade was placed. Let's go to Bank Nifty chart, okay? The green box that you see is going to be my entry and the red box that you see is going to be my exit positions. So sharp at 9, how much was it? 9:32. Sharp at 9:32, somewhere between these two, I entered into a PE contract in the market. Now what is PE contract? We enter into a PE contract or a put contract when we think that the market is bearish. Okay, so the reason for me to take this trade was very simple. अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं टाइम फ्रेम पे, then we can see a trend line being formed here. First support, second support and third support was also respected in the market by the same trend line. And आज के दिन जब market gap down open हुआ, even after market opening gap down, it started falling and it broke your trend line. At this time, I entered into a PE contract, booked around 433 पे एंटर किया था, 460 पे एग्जिट किया. अराउंड 27 पॉइंट्स हमने बुक किया और हमने एग्जिट कर लिया व्हेन द प्राइस केम डाउन टू 32,320 या 330 इसके आसपास. सो हमने लगभग बैंक निफ्टी स्पॉट में लगभग 100 पॉइंट्स कैप्चर किए और ऑप्शंस में हमने 30 पॉइंट कैप्चर किया फॉर अ पीई कॉन्ट्रैक्ट, वो भी एट द मनी का. तो मैंने और वेट किया, और वेट करने के बाद मेरा लॉजिक यही था कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ. एंड ऑन ईमा आल्सो आई एम यूजिंग 9 ईमा. ऑन ईमा आल्सो द ट्रेड द सर्टेन पैटर्न दैट आई कैन सी इज बियरिश, क्योंकि जो ईमा लाइन है वो कैंडल 6 के ऊपर है, इसका मतलब बियरिश पैटर्न चल रहा है. अगर ईमा लाइन कैंडल 6 के नीचे आ रहा है तो बुलिश पैटर्न चल रहा है. सो नाउ दैट यू कैन सी, मैंने जो एंटर किया था मैंने तुरंत 100 पॉइंट्स में एग्जिट कर लिया. माई फर्स्ट ट्रेड इज डन. नाउ व्हेन द प्राइस फेल डाउन, यू कैन सी दैट ये जो लेवल है मैंने मार्क किया ऑलरेडी, ये लेवल, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट लेवल इन द मार्केट. इन द सेंस इधर वो सपोर्ट की तरह काम करेगा या इधर वो रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा. और हमने ये कैसे ड्रॉ किया, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल हाइज बन रहे इधर और एक
टच भी मिल रहा है। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं फॉर द सेम प्लेस, वी कैन सी इधर एक और क्लोजिंग हमको मिल रहा है। इस समय पे मैंने एक CE कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। CE इज अ कॉल कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने 946 को अराउंड 946, लेट्स गो बैक टू द शॉर्टर टाइम फ्रेम ऑफ 1 मिनट। तो मैंने 946 को शार्प इस पॉइंट पे एक कॉल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था और मैंने एग्जिट तुरंत कर लिया विद स्कैल्पिंग अराउंड 70 पॉइंट्स मैंने स्कैल्प किए। फॉर 70 पॉइंट्स मेरे को ऑप्शन में अराउंड 497 मेरा एंट्री था, 513 मेरा एग्जिट था। तो कितना हो गया, अराउंड 20 और 23 के आसपास मैंने इधर स्कैल्प कर लिया सी ऑप्शंस में। द रीजन बिहाइंड दैट इज प्राइस ये जो गिरा है नीचे, ठीक है, इतना नीचे गिरने के बाद एक सपोर्ट लेवल के पास जब प्राइस आता है ना, तो इट विल शो रिएक्शन, इट विल डेफिनेटली शो रिएक्शन। अभी ये जो ऊपर का लेवल है, ठीक है, ये आप ध्यान से देखिए, ये जो लेवल है इधर भी प्राइस रिएक्शन शो कर रहा है, गिरने के बाद रिएक्शन शो कर रहा है। इसको रिवर्सल बोलते हैं मार्केट में। इन अ रिवर्सल यू कैन एंटर इनटू इट बट ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो मैंने अभी किया सेकंड ट्रेड में। जब प्राइस सपोर्ट के पास गिर गया था, मैंने रिवर्सल में एंटर किया ऑन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अराउंड 5 मिनट्स मैक्स, 5 to 6 मिनट्स में मैंने एग्जिट कर लिया इस ट्रेड से। ये हो गया हमारा सेकंड ट्रेड। अभी थर्ड ट्रेड की बात करें, ये आप इग्नोर कर लो, इक्विटी का मैं आज बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आज ऑप्शंस की बात करूंगा। और मैंने थर्ड ट्रेड लिया है अराउंड 1252 को, ठीक है, इधर आता है 1250, इधर आता है 1252 पे मैंने एक PE कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था, ठीक है। PE इज अ पुट कॉन्ट्रैक्ट 32,400 का। ओके, बिफोर आई डिस्कस दिस ट्रेड, ओके, व्हेन यू वांट टू ट्रेड इन ऑप्शंस यू नीड टू नो 4 to 5 पॉइंट्स बिफोर यू ट्रेड, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करते हैं, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी क्या होता है, यू नो दीज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का डेल्टा वैल्यू क्या है, और इनका प्राइसेस कैसे डिसाइड होता है। अगर मैं स्पॉट में कुछ पॉइंट्स मूव होता है तो उतने में कितना पॉइंट्स मूव होता है इन दिस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, इन द सेंस if Nifty or Bank Nifty, let's say Bank Nifty is moving 100 points, how much will that option you're trading in will move? You need to know all this and it can be calculated, right? अगर आपके पास ये सारे details नहीं है and you're still trading in options, then it's a very very bad deal for you. So first learn all these and then you can enter into options. If you want me to make a video on this, do comment below and I will consider that and I'll make an option video just on this certain 4 important points that we just discussed. So let's move on to the next trade that we took in the market. वो around 1252 को हमने थर्ड ट्रेड लिया था मार्केट में PE कॉन्ट्रैक्ट का 1252 को, और मार्केट ऊपर गया, मैं लॉसेस में था, मेरा लॉसेस मेरे को याद नहीं है पर कुछ लॉसेस में था मैं, अराउंड 2000-3000 के आसपास। When the price fell, मैंने तुरंत एग्जिट कर लिया इस ट्रेड पे एट दिस पॉइंट। ये जो रेड बॉक्स आपको दिख रहा है, ये हमने क्यों किया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? द रीजन इज, कैन यू सी अ पैटर्न बीइंग फॉर्म्ड हियर, ठीक है, ये एक पैटर्न बन रहा है मार्केट में। लेफ्ट शोल्डर, एक मिनट, हेड, राइट शोल्डर पैटर्न बन रहा है, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। इन एन इनवर्स हेड एंड शोल्डर एक नेक लाइन हमेशा रहता है मार्केट में, और वो नेक लाइन ये था, ठीक है। अभी फिर से मार्क करते हैं, ये हमारा पहला लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, और हमारा ये जो लाइन है ये हमारा नेक लाइन बन गया मार्केट में, ठीक है। ये जो जोन है ना, ये नेक लाइन बन गया। अभी नेक लाइन के पास जब प्राइस आता है तो रिएक्शन बिल्कुल शो करता है, क्योंकि ये जो पहले रेसिस्टेंस था अभी ये सपोर्ट की तरह काम करेगा ऑन अ वेरी शॉर्टर टाइम पीरियड। स्कैल्पिंग में इतनी कंसंट्रेशन के साथ आपको देखना पड़ेगा कि एवरी मूवमेंट यू हैव टू एनालाइज दैट दिस इज अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और नेकलाइन के पास रिएक्शन दिख सकता है मार्केट में। तो एवरी स्मॉल डिटेलिंग यू शुड नो, एंड हाउ पैटर्न्स वर्क, हाउ प्राइस एक्शन वर्क्स, एंड ये जो इंडिकेटर है जो छोटे टाइम फ्रेम पे काम करता है वो कैसे काम करता है, सब आपको मालूम होना चाहिए टू डू स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग इज वेरी वेरी हार्ड, स्पेशली ऑन डे ट्रेड, राइट। सो हमने एंटर इधर किया था PE कॉन्ट्रैक्ट में, थोड़ा बहुत लॉसेस में थे, अराउंड 2,000 to 3,000 के आसपास।
और तुरंत मार्केट गिरा। मार्केट गिरने के बाद इस लेवल पे मैंने मार्केट से और या अपने ट्रेड से एग्जिट कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड ट्रेड इन द मार्केट। अभी फोर्थ ट्रेड जो है वो मैंने लिया था 1.6 को। ठीक है, ये मैंने लिया था, नहीं ये दूसरा ट्रेड के बारे में बात कर रहे हो। 125 को मैंने कौन सा ट्रेड लिया, ओके 127 को, 127। इग्नोर दीज ट्रेड्स, ये छोटे छोटे ट्रेड्स थे, इस पे मैं इतना मतलब बात नहीं करूंगा। वो भी प्रॉफिट ट्रेड्स थे। मैंने एंटर 78 पे किया, 98 में मेरा 20 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, तो ये भी प्रॉफिट वाले ही ट्रेड्स थे। लेट्स गो ऑन टू द मेन ट्रेड जिसमें थोड़ा लॉजिक बैठता है मार्केट का। 127 का एंट्री है, ओके इधर है 127 पे मैंने 32,300 के कॉल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था। और प्राइस 433 इन द मार्केट और एग्जिट हमने किया था 450 पे। वो हमारा 17 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इधर बुक किया। ना लॉजिक क्या बनता है इसका लॉजिक ये बनता है दैट एक तुरंत फॉल के बाद इन द मार्केट, ठीक है, एक पैटर्न बन रहा है फिर से। यू नीड टू लुक वेरी केयरफुली। ये हमारा फर्स्ट हेड और ये सेकंड हेड, सो इट इज अ डबल टॉप पैटर्न इन द मार्केट। डबल टॉप पैटर्न का जब भी ब्रेकआउट होता है तो हाई सेलिंग प्रेशर आता है मार्केट में। ठीक है, ये हमारा नेक लाइन हो गया। नेक लाइन को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के तुरंत हमें एक बहुत सेलिंग प्रेशर आता है। Always remember, when there is a high selling pressure in the market on a shorter time period, reversal is very common. It is very common. So the moment ये जो selling pressure आ गया था, you can see this reversal in the market. You see this? When there is a reversal, it will be a big move or a sufficient move to do scalping, right? So हमने enter इस जगह पे कर लिया जो green box आपको दिख रहा है मार्केट में। So 127 के आसपास, somewhere between this, हमने इधर एंटर किया एक कॉल कॉन्ट्रैक्ट पे और हमने टॉप में सेल किया इसको ऑन द टॉप, पिक्चर क्लियर परफेक्ट टॉप। ये हमने और ये मैंने टॉप बनने से पहले ही सेल कर दिया था। सो आई न्यू दैट ये टॉप बनेगा मार्केट में। इसका लॉजिक फिर से क्या बैठता है, जोन्स, इंपॉर्टेंट जोन्स इन द मार्केट। ठीक है, अगर हम पीछे जाते हैं देन सी हाई बन रहा है, मल्टीपल टचेस मिल रहे हैं एक जोन पे। ये हमारा पहला रीजन है। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको, ये मतलब थोड़ा कंसंट्रेशन तो चाहिए आपको समझने के लिए, इतना इजीली समझ नहीं आएगा। पहला मेरा कॉन्सेप्ट क्या बैठता है, ये एक हाई बन रहा है। ठीक है, ये हाई बन रहा है, इसके भरोसे पे मैंने ये मार्क कर दिया। दूसरा निकालते हैं, अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक है, इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये जो पॉइंट बन रहा है मार्केट का, पहला रेसिस्टेंस, सेकंड रेसिस्टेंस, थर्ड रेसिस्टेंस। जब प्राइस थर्ड रेसिस्टेंस के पास आता है देन इट विल शो रिएक्शन। और मैं हर वीडियो में इसके टॉपिक के बारे में बोलता हूँ, द थर्ड टच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टच और थर्ड टच हमेशा रिस्पेक्ट करता ही है। एंड द फोर्थ टच इज द फेक टच, इन द सेंस फोर्थ टच में ब्रेकआउट होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा रहता है। ठीक है, सो रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस, सो हमने इधर एंटर किया और इधर हमने एग्जिट कर दिया ऑन द कॉल कॉन्ट्रैक्ट। 127 पे एंट्री, 32,300 कॉल, 32,300 एग्जिट, अराउंड 17 पॉइंट्स हमने इजीली इधर बुक कर लिया मार्केट में। नेक्स्ट, ये जो लास्ट ट्रेड हमने लिया मार्केट का, अराउंड 250, लेट्स सी कितने बजे लिया, 258 पे लिया और 310 में हमने एग्जिट कर लिया। ये छोटा एक और ट्रेड मैंने लास्ट में क्या बोलते हैं, मार्केट डेप्थ देखने के लिए मैंने बस ऐसा ही ले लिया था। 2 रुपए के लॉस में मैंने क्लोज कर दिया। इसका कोई ज्यादा लॉजिक नहीं बनता है, तो मैंने इसके बारे में कोई एक्सप्लेन नहीं करूंगा। और अपना लास्ट ट्रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड है। ठीक है, इसमें हमने अराउंड 4,000 प्रॉफिट्स बुक किया है। 258 को मेरा एंट्री था, 310 को मेरा एग्जिट था। तो अगर हम देखते हैं 258, ठीक है, 258 आसपास, इस कैंडल के आसपास, और एग्जिट था हमारा 310 पे। ठीक है, 310 पे ये जो विक दिख रहा है ना आपको,
ये जो बड़ा विक दिख रहा है इसका एडवांटेज हमने लिया था मार्केट में, क्योंकि ये जो विक टच होते ही मार्केट गिरने लग गया इन 1 मिनट टाइम फ्रेम। इसका लॉजिक क्या बनता है? पैटर्न्स 1 मिनट में हो, 5 मिनट में हो, 15 मिनट में हो, आधे घंटे में हो, 1 घंटे में हो, पैटर्न्स दिखता ही है मार्केट में। हमेशा पैटर्न्स देखने के लिए you should pay the first attention. Either what is the pattern that we can see? Left shoulder, head, right shoulder. दिख रहा है? Simple as that. Left shoulder, head, right shoulder. कौन सा पैटर्न है ये? Inverse head and shoulder पैटर्न है, जो 2 बार ऑलरेडी मैंने इसी दिन इसी स्टॉक और इसी इंडेक्स और ऑप्शन में ट्रेड किया है। और ये जो हमारा नेक लाइन बन रहा है, नेक लाइन हमेशा ब्रेक होने का चांसेस ज्यादा रहता है मार्केट में, ठीक है। तो जब ये लो बना मार्केट का, ये जो लो बना मार्केट का, इधर एक जोन बनता है, इंपैक्ट जोन बनता है। डू यू सी दिस? व्हाई इज इट दैट इस जोन पे ही मार्केट एक मूव देता है? ये हमारा एक जोन बन गया, ये हमारा एक जोन बन गया, ये पूरा जोन है। तो मार्केट इधर गिरने के बाद तुरंत हमने इधर एक एंट्री ले लिया, इज समवेयर बिटवीन दिस, एंड हमने लास्ट में नेक लाइन के पास हमने सेल कर दिया मार्केट का। ये एक्चुअली हम और होल्ड करते थे। ये देखिए, ये प्राइस नेक्स्ट ऊपर वाले रेजिस्टेंस के पास भी पहुंच गया, ठीक है, इधर तक पहुंच गया, पर मैंने इतना होल्ड नहीं किया इसको। मेरे प्रॉफिट्स के आसपास ही था, मेरे रेंज के आसपास ही था, तो मैंने 4000 प्रॉफिट्स में इसको सेल कर दिया। तो ये हमारा लास्ट ट्रेड था मार्केट का। लॉजिक यही बैठता है लास्ट ट्रेड का। पैटर्न अच्छा सा परफॉर्म कर रहा है, और कोई भी पैटर्न हो मार्केट में, राइट एंट्री पॉइंट इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ स्कैल्पिंग। अगर आप एंट्री रॉन्ग करते हो तो आप बड़ा लॉस बुक करोगे स्कैल्पिंग में, क्योंकि स्टॉप लॉस तो आप रख लोगे तो स्टॉप लॉस हिट होगा, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखोगे तो बड़ा लॉस हिट होगा। सो स्कैल्पिंग में राइट एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये मेरा लाइट्स आर टर्न्ड ऑफ, आई हैव टू फिक्स दैट। Anyway, this is about it for this video, and do like the video, do subscribe to the channel, and I will see you in the next episode or the next video whenever we release it. Have a great day.